Praise the Lord, everyone. Hallelujah. And today it's one more time that I could come on this page. I thank the Lord that He kept me well and He kept everything all right. And please pray for the network that it may go on well. And I welcome each one of you. And I hope that you will feel the Lord's presence during this service. So let's pray. Dear gracious, loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You, Lord, for this beautiful day You have given us. Lord, thank You, You have added one more day in our life. Thank You, Lord, You have given us all these breaths and heartbeats, so we are alive in this world. Dear Father, thank You for all Your blessings, and thank You, Lord, for Your grace and mercy. Thank You, dear Father, for this wonderful time, and use me for Your work, dear Father, and fill me with the Holy Spirit, so Holy Spirit may guide me and lead me, and I may glorify Your name. And dear Father, I pray for all the listeners, those who come, they also may be filled and guided by the Holy Spirit, and this preaching may bring lot of fruit in our life. Thank You, dear Lord, for Brother Anupam and Shabnamji, who have given me this opportunity to speak on their page. Bless them, dear Father, and keep them well. For we ask all this in Jesus' precious name. Thank You so much. In Jesus' name, Amen. So once more, praise the Lord. And first we will start singing, and then we'll go into the word. So first song is like this. आइए हम हिंदी में एक गाना गाते हैं, और आप सबको ये गाना पता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सॉन्ग है और बहुत ओल्ड सॉन्ग है, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है, न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है, न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। स्तुति सना हम गाते हैं, स्तुति सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता
हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आवर ब्लेसेड लॉर्ड वो हमें हर आशीष देने के लिए तैयार है। वो वेट करता है कि कब उसके बच्चे उसके पास आएं और उसकी बात को सुने, उससे बातें करें और वो हमको आशीषों से भर दे। और ये गाना बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है, और इसको जब हम गाते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है और हम उसकी आशीषों से सचमुच में भर जाते हैं। और आइए अब हम दूसरा गीत गाते हैं जो कि इंग्लिश में है। I hope you can see me because I cannot see any comments here and I can't see any face on the page. Maybe there is some problem, but I hope you can hear me. If you cannot hear, then please write it in the comment box. When upon life billows a tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Praise the Lord, Shabnandi. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven and home in high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So
every moment we experience the Lord's blessings. The time we wake up from sleep, and the time we get ready, the time we do various things, the time we get out of the house and go to work, or we work in the house, we keep experiencing the blessings of the Lord, the blessings of children, the blessings of things in our house, the blessing of our job, the blessing of money, the blessing of your presence above all, we can have and we can feel in our hearts. So we have to praise the Lord for all his blessings. So after the singing, let us go into the word, and as you have seen that today's topic is be like Jesus. So there is nothing in the world, ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसकी हम कामना करें. हमें बस एक ही कामना करनी है कि हमें जीसस के समान होना है. वी शुड बी लाइक जीसस, बी लाइक जीसस. इवन दो ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम चाहते हैं और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, तो प्रभु हमारी जरूर सहायता करेंगे. होली स्पिरिट हमारी सहायता करेंगे टू बिकम लाइक जीसस. बिकॉज वही उनका उद्देश्य है, प्रभु का उद्देश्य यही है कि हम जीसस के समान बने, उनके स्वरूप में बने. तो इसके लिए एक वर्ड्स मैं पढ़ना चाहूंगी जेनेसिस 1:26 से. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए. तो यहाँ पर गॉड मीन्स फादर, सन एंड होली स्पिरिट वो बातें कर रहे हैं कि चलो हम मनुष्य को बनाएं और उसको अपनी समानता में बनाएं. उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे. हो सकता है कि उन्होंने कभी ऐसे ना सोचा हो, लेकिन जब उनके मन में ये बात आई तब उन्होंने मनुष्य को बनाने की बात करी. और ये 6000 वर्ष पहले हुआ था, जैसा कि स्कॉलर्स कहते हैं कि 6000 वर्ष पहले ये दुनिया बनी थी. और इसी तरह से जेनेसिस 1:27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने नर और नारी, मेल एंड फीमेल, दोनों को यहाँ पर दोनों के बारे में लिखा है कि उसने नर और नारी की सृष्टि की. उसने आदम और हवा को बनाया और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलता रहा. बीच बीच में क्या हुआ ये सब तो हम जानते हैं, और हम जानते भी रहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में. लेकिन परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य था मनुष्य के बनाने का, वो ये था कि हम लोग उसके स्वरूप में बनकर उसकी प्रशंसा करें और उसके गुणगान गाएं. इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था. लेकिन मनुष्य जो है वो उसने परमेश्वर को धोखा दिया, वो परमेश्वर की आशा के विपरीत चलने लगा. और यहाँ हम 2 कुरिन्थियन 3:18 में देखते हैं कि लिखा है, जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. तो ये बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियन 3:18 में, कि हम लोग अंश बाय अंश जो है वो चेंज होते जाते हैं. ये नहीं कि हम पैदा होते ही यीशु मसीह के स्वरूप में चले जाते हैं, हम यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और अपने आप को हम मिरर में देख के, आईने में देख के, हम प्रभु की आत्मा के द्वारा जो क्या बनते हैं, प्रभु यीशु के समान बनते चले जाते हैं, अंश बाय अंश. दैट मीन थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु के समान बनते चले जाते हैं. तो ये हमें सिखाता है कि हम अगर
हम अगर एकदम सफिशिएंट नहीं हैं, अगर हम एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर हम एक्सपीरियंस नहीं हैं, तो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें राह दिखाने के लिए और हमको ये दिखाने के लिए कि हमें कैसा जीवन जीना है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दी है। जब उसने यीशु मसीह को अपने पास बुलाया, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं एक सहायक तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ जो तुम्हें इन सब बातों के बारे में बताएगा। तो पवित्र आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी, वो हमको सब कुछ सिखाता है। और जब हम पैदा हुए थे तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर थी, और ये परमेश्वर की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि ये वही आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि मुर्दों में से जिलाना एक बहुत ही महान कार्य, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इवन तो ये परमेश्वर का प्लान था, बट ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वही आत्मा परमेश्वर की हमारे अंदर भी है। और तभी यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञाएं की वो उनको पूरी करते हैं। उनकी कोई भी प्रतिज्ञा झूठी नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर बाइबल में लिखा हुआ एक भी वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। तो ये वचन जो है कभी नहीं टलता है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, और वो हमको रास्ता दिखाएगी, वो हमको परमेश्वर के स्वरूप में बदल देगी। हम कितने भी पापी क्यों ना हों, हम कितने भी कीच में क्यों ना गिरे हों, हम कितने भी गड्ढे में क्यों ना गिरे हों, पर परमेश्वर हमें उठाने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इंसान नाश हो, और वो चाहता है कि हर जगत के सारे लोग जो हैं वो उसके पास जाएं, क्योंकि एक दिन सबको ही इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और तब हम कहाँ जाएंगे, आइदर स्वर्ग में या नरक में। परमेश्वर यही चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं स्वर्ग में जाएं, क्योंकि उसने हर एक को बनाया है और हम उसके हाथों की रचना हैं, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी गलत जगह पे जाएं। जैसे माँ बाप जो है अपने बच्चों को कभी नहीं चाहते कि वो गलत जगह पे जाएं, या वो किसी खतरे की जगह में जाएं, या उनको कोई धोखा दे, या उनको कोई बहका दे, वो लोग नहीं चाहते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए भी नहीं चाहता है कि हम बहक जाएं और पाप की दुनिया में जाके अंधकार में खो जाएं। वो प्रकाश है और वो हमको प्रकाश में ही रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि रोमन्स 8:28 एंड 29 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात लिखी है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसको पुत्र के स्वरूप में तो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं वो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम जो हैं उन सारे प्लान्स को, परमेश्वर की योजनाओं को जानें जो उसने हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित कर रखी थी। और जब हम मदर के वूम में भी नहीं आए थे तब से परमेश्वर हमको जानते हैं, और उन्होंने अपनी हथेली पर हमको रचा है, और हमारा चित्र हमेशा उनके सामने है। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हम उनकी आंखों की पुतली हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि हम उनकी आंखों से ओझल हों। और परमेश्वर जो है हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, और अगर कोई बुराई भी हमारे रास्ते में आती है या कोई परिस्थितियां अगर बदल जाती हैं तो
मेरे प्रियो याद रखिए कि उसमें परमेश्वर की कोई योजना है। जैसे कि यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं। और परमेश्वर ने हर योजना हमारे भलाई के लिए बनाई है। तो कभी हमारे जीवन में सुख आते, कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, पर परमेश्वर हमको अपने स्वरूप में ढालना चाहता है और इसीलिए जो है वो तरह तरह से हमको बनाता है। और हम देखते हैं कि एक कुम्हार जैसे मिट्टी को गूंदता है, फिर मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और उनको इतने शेप देता है और फिर उसको क्या करता है, वो जब वो बर्तन बन जाता है तो उसको वो सुखाता है, फिर उसको आग की भट्टी में डाल देता है ताकि वो मजबूत हो जाए। तो आपने देखा कि उस बर्तन को बनाने में मीन्स कुम्हार को तो मेहनत लगी ही, कुम्हार को सब पता है और कुम्हार ने अपना वक्त दिया, लेकिन उस मिट्टी को कितनी यातनाओं के थ्रू जाना पड़ा एक सुंदर बर्तन बनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें वेरियस इस परिस्थितियों के थ्रू ले जाता है ताकि हम और भी सुंदर बन जाएं। और जब हम उसके अनुसार नहीं बनते हैं तो वो हमको तोड़ता है और फिर से हमको जोड़ता है, फिर से मिट्टी को गूंथता है और उस बर्तन को फिर से वो बनाता है। उसके बाद वो पेंटिंग करता है और इतना एक सुंदर बर्तन तैयार होता है। तो मेरे प्रियो, जो क्रिश्चियन लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उसमें परमेश्वर की कोई योजना होती है और हमें जो है जब हमने उससे सुख लिए हैं तो हमें दुख लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अय्यूब कहता है कि क्या उसने हमें अच्छी चीज़ें नहीं दी तो हम क्यों उसके दुखों को ना लें। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कहना है कि परमेश्वर हमको चाहे सुख से चाहे दुख से ले जाए, हमें उसका धन्यवाद देना है और हमें याद रखना है कि वो हमको एक सुंदर रूप दे रहा है जो कि परमेश्वर का स्वरूप है। सो हालेलुया। देन एफिशियन 4:14 और 15 में आइए क्या लिखा है हम देखते हैं। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हरेक झोंके उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो हमको मसीह के, यीशु मसीह के स्वरूप में बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम बच्चे ही बने रहें और बस हम दूध के ऊपर निर्भर रहें, पर वो चाहते हैं कि हम मीठ खाना सीखें। दैट मीन्स हम मजबूत बने और हम यीशु मसीह के स्वरूप में बने। और यीशु मसीह जो है वो पहलौठा है, जैसा कि हमें बाइबल में मिलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान बने और यीशु मसीह पहलौठा है। तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के उद्देश्य को देखते हैं कि वो हमको क्या बनाना चाहता है। जिस तरह हमने मिट्टी के बर्तन का वर्णन किया, उसी तरह हम देखते हैं कि एक मसीही जीवन में क्या क्या होता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि एक सोना जो है, सोने से आभूषण, उसको तपते हुए आग में डाल के, तपती हुई ज्वाला में डाल के बनते हैं। एक चांदी के बर्तन को भी आग में जलाकर और फिर उसको पोंछ कर देखते हैं कि कैसे वो चमक रहा है। और उस चांदी के बर्तन को बार बार आग से तपाया जाता है और फिर पोंछा जाता है ताकि उसमें परमेश्वर का मुख, ताकि उसमें उस सुनार का मुख दिखने लगे, उसका चेहरा नजर आने लगे। इसी तरह परमेश्वर हमको आग में तपाते हैं और हमको जो है बार बार आग में तपा के वो देखते हैं कि उनका चेहरा हमारे अंदर नजर आ रहा है कि नहीं। हमारा जीवन एक दर्पण के समान हो जिसमें यीशु मसीह नजर आए। तो मेरे प्रियो, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो बाइबल में दिए हुए हैं। और ये नहीं कि जो एक मसीही जीवन बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अमीरी से भरा होता है या सुख संपत्ति से भरा होता है। हो सकता है जब परमेश्वर हमें देता है तो उसमें वो कोई आपत्ति नहीं डालता, लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके पास कम खाने के लिए है और जिनके पास घर भी नहीं है, जिनके पास कोई सुख सुविधा की चीज़ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है और परमेश्वर उनसे अपनी सर्विस लेना चाहता है। हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसका लाख लाख धन्यवाद हो कि हम जैसे पापी लोगों को उसने अपनी महिमा के लिए चुना। और अगर हमारे पास कुछ कमी भी है तो हमको कभी भी बड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे महान शक्ति हमारे साथ है और उसने वायदा किया है कि देख मैं तेरे साथ हूँ और तू कभी डरना नहीं। तो जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। और जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विपरीत हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जो शैतान है वो ये चाहता है कि हम उसकी सभा में शामिल हो जाएं और उसकी जो दुनिया की चकाचौंध में खो जाएं और हम पाप पे पाप करते चले जाएं ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें और उसके वचन को थामे रहें और हम उसके वचन को डेली मनन करें और प्रार्थना मांगें। और जब भी शैतान हम पर कोई भी तीर चलाता है तो हम उसको रिब्यूक करें, हम उसको डांटें कि यीशु मसीह के नाम में तू दूर हो जा। जैसे कि यीशु मसीह ने किया था, उसने भी उस शैतान को झिड़क दिया था और वो यीशु मसीह ने उसको अपने पास से भगा दिया था। उसी तरह से हमें भी उसको अपने पास से भगा देना चाहिए। और प्रियो, हम ये कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि परमेश्वर का वही आत्मा, सामर्थ्यमयी आत्मा हमारे अंदर है और हम प्रभु का मंदिर हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होते हैं और उसके समान दिखते हैं तो शैतान इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। और वो जैसे ही हमारे पर नज़र डालेगा, गलत नज़र डालेगा, वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर देख के भाग जाएगा, क्योंकि वो एक सिंह के समान है जो कि हमको फाड़ खाना चाहता है। लेकिन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमको बचा सकता है। और इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा है कि जो एक सिंह होता है वो हमें क्या करता है कि वो मौका ढूंढता है कि हम कब ऐसे उसके चुंगल में आ जाएं और वो हमको फाड़ खाए। तो छोटी से छोटी गलतियों से भी वो हमारे अंदर आ जाता है और हमको जो है भड़काना चाहता है। और यहाँ पर वर्स 1 पीटर 5:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो हमको दीनता से रहना है। हमको ये नहीं कि बड़ी बड़ी हेकड़ी मारनी है और बड़े घमंड के वर्ड्स बोलने हैं, या हमें सिर ऊंचा करके और जैसे फक्की फरीसी लोग चलते थे और घमंड की बातें करते थे और दिखावा करते थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वैसे करें, और अगर हम वैसे करेंगे तो वो हमसे दूर रहेगा, वो हमारे पास नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम दीनता से रहें। और 1 पीटर 5:5 उसके बी पार्ट में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो अगर हम दीन बने रहते हैं तो वो हम पर अनुग्रह करता है और हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है और वो कौन कौन से भेद हमारे लिए खोलना चाहता है। तो जब हम उसकी नज़दीकी में रहते हैं और जब हम अभिमान नहीं करते हैं तब वो हमको वो सारी चीज़ें बताता है।
और हम देखते हैं कि जो लोग घमंड करते हैं उनसे परमेश्वर सख्त नफरत करता है। सो जीसस ने कभी भी घमंड नहीं किया। जीसस के समान अगर हमें बनना है तो हमको हम्बल बन के रहना है और हमें घमंड नहीं करना है। आपको याद होगा कि डैनियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा था और उसको कितना घमंड था कि वो अपनी ही वर्शिप करवाना चाहता था लोगों से। वो परमेश्वर को नहीं मानता था और वो परमेश्वर को का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। ये इतना कि उसने डैनियल को क्या किया, उसके सिंहों के उसने कुंड में डाल दिया था कि सिंह उसको फाड़ खाएं और उसको मार डालें, पर परमेश्वर ने उसको बचा लिया। यहाँ पे एक बात मैं ये बताना चाहती थी कि नबूकदनेस्सर क्योंकि वो बहुत घमंडी था तो उसको परमेश्वर ने क्या सजा दी कि उसको एक जानवर के समान बना दिया और वो जानवर के समान जो है जंगलों में चला गया और वहाँ पर घास चरने लगा। कई साल तक वो इसी अवस्था में रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसको फिर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित किया और उसको अपने राज्य में भेजा जब वो हम्बल हो गया। तो कितनी मेरे प्रियो, हमें प्रभु से डर के भी रहना है। इवन दो वो हमसे बहुत प्रेम करता है, पर जब हम उसके विपरीत जाते हैं और शैतान की बातों में आ जाते हैं तो वो हमको सज़ा भी देता है और वो हमको बड़ी से बड़ी सज़ा दे सकता है, क्योंकि पाप इंसान करता है पर उसका प्रतिफल भी होता है और परमेश्वर जो है हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। जब हम माफ़ी मांगते हैं और वो पाप हम फिर कभी दोहराते नहीं हैं तो वो हमको क्षमा करता है। और यीशु मसीह ने सलीब पर से भी लोगों के लिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को माफ़ करें, जो हमारे विरुद्ध गलती करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं या हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्षमा किया और उसके हाथ में ये पावर थी कि वो क्षमा कर सकते थे और उन्होंने कई लोगों को क्षमा किया और जब वो क्रूस पर थे तब भी उन्होंने लोगों को क्षमा किया। और कितने लोगों ने जितनों ने उनको यातनाएं दी थी उन सब को उसने क्षमा किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उनको श्राप भी दे सकते थे और उनको नरक कुंड में भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य जाति को मौका दिया, उनके लिए प्रार्थना करी कि वो नरक कुंड में ना जाएं, कि वो नरक में ना जाएं, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करके क्षमा मांगे और फिर वो स्वर्ग के राज में जा सकें। तो इतना महान है हमारा परमेश्वर, इतना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा एग्जाम्पल है लूसीफर का। लूसीफर जो था वो एक फरिश्ता था। आप सब जानते हैं कि लूसीफर एक स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर ने बड़े प्रेम से बनाया था और सबसे सुंदर बनाया था और परमेश्वर ने उसको अपना बेटा भी माना था। तो लेकिन परमेश्वर की हर बात वो जानता था और उसके मन में घमंड आ गया। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं, परमेश्वर की जगह ले लूं, परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं। ये नहीं कि परमेश्वर के समान जैसे वो चाहता कि हम उसके स्वरूप में ढल जाएं, वो नहीं। वो चाहता था कि वो परमेश्वर के स्थान को ले ले और परमेश्वर से तो कुछ छुपा नहीं है। उसको लूसीफर का मन जो भी विकट मन पता चल गया और परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। और उसी को नहीं बल्कि जो भी लूसीफर को मानते थे उन सारे दूतों को उसने नीचे गिरा दिया, जो कि 30% जो थे सारे दूतों में जो आकाश में थे उसमें से 30% दूतों को परमेश्वर ने लूसीफर के साथ नीचे गिरा दिया। तो घमंड का जो नतीजा है, घमंड का फल बुरा होता है और कभी भी यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम घमंड करें।
तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स बाइबल में दिए हुए हैं कि हम घमंड ना करें, हम विनम्र रहें, नम्रता से बात करें और किसी के सामने अपनी बड़ाई ना करें। और 1 पीटर 5:8 में लिखा है, ये वर्ष मुझे उस समय नहीं मिल रही थी। 1 पीटर 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे प्रियो, अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं और किसी उस गलती को करते करते हम पाप में गिर जाते हैं, तो क्या होता है कि शैतान बहुत खुश होता है कि हम उसकी सभा में शामिल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी इंसान थोड़ी सी ड्रग लेता है, शुरू में उसके फ्रेंड्स कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, तुम थोड़ा सा लेके तो देखो, इससे कितना आनंद आता है। और वो थोड़ी सी ड्रग लेता है, फिर उसको और अच्छा लगने लगता है, फिर वो और ड्रग के डोज को बढ़ा देता है, फिर और बढ़ा देता है, और वो इस तरह से एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है और वो पाप के गड्ढे में गिर जाता है और शैतान के जो युक्ति में वो आ जाता है। शैतान सफल हो जाता है कि ये इंसान क्या हुआ, वो मेरे चुंगल में आ गया है। तो यही नहीं, बहुत से लोग जो है मर्डर करने में वो शामिल हो जाते हैं, बहुत से लोग स्मगलिंग करने लगते हैं, बहुत से लोग जो हैं सेक्सुअल परवर्जन्स में चले जाते हैं और बहुत बुरे बुरे काम करने लगते हैं जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं। और वो जो हम क्रिश्चियन होकर भी क्या करते हैं कि 10 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन होकर भी हम उन 10 आज्ञाओं को पढ़ते तो हैं जो मूसा से परमेश्वर ने लिखवाई थी, लेकिन हम उनको नहीं मानते हैं। यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमको उन 10 आज्ञाओं को मानना है और हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। ये 1 पीटर 5:9 में लिखा हुआ है कि विश्वास में दृढ़ रहो। तो अगर हमारा विश्वास जो है दृढ़ रहता है, हम डगमगाते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी होने से डगमगा जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं दुआ नहीं कर सकता, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और परमेश्वर जो है मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुन रहा है। तो उस समय क्या होता है कि परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और परमेश्वर ये सोचते हैं कि इसका विश्वास जो है वो डगमगा गया है। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो कि अनदेखी चीज़ों के लिए होता है। अनदेखी चीज़ें जिसके लिए हमने कल्पना भी नहीं करी है, जिसको हमने देखा भी नहीं है, या जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें पता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और एक दिन वो हमको सही समय पे वो चीज़ ज़रूर देगा। क्योंकि अगर एक बच्चा अपने पिता से क्या रोटी मांगे तो क्या पिता उसको एक पत्थर का टुकड़ा देगा, और अगर मछली मांगे तो क्या वो उसको सांप देगा। जैसा वर्ड ऑफ गॉड हमसे बताता है कि जब एक दुनियावी पिता इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को देना चाहता है, तो क्या परमेश्वर वो महान पिता, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सामर्थी परमेश्वर हमको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमको ज़रूर देगा। और कभी कभी विलम्ब होता है, देर होती है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में, लेकिन हमको जो है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विलम्ब में भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होता है। आपने देखा कि अब्राहम और सारा की लाइफ में 100 साल बीत जाते हैं और उनको कोई भी बेबी नहीं होता है, लेकिन जब अब्राहम याद करता है कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि वो कई नेशंस का फादर बनेगा और कई संतानों का पिता बनेगा, वो बात उसको, वो प्रतिज्ञा उसको याद रही और वो हमेशा उसने उसी का इमेजिनेशन किया कि परमेश्वर उसको कई संतानों का पिता बनाएगा। तो मेरे प्रियो, जब वो 100 साल तक इंतज़ार कर सकता है, तो क्या हम कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हर एक चीज़ में
परमेश्वर की इच्छा होती है। और हर एक चीज़ का एक समय होता है। और जब हम दुखों को देखते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर कब तक, ऐसा क्यों है, कब तक ऐसे चलेगा। तो परमेश्वर ने एक दिन मुझे ये प्रॉमिस दी कि अपने समय में परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अपने समय में परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। तो विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं जो विश्वासियों के जीवन में, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहते हैं और वो उन सब को ठीक करेंगे। जैसे कि बहुत सारे मसीहों पे जो है बहुत ही अत्याचार होते हैं, उनको मारा जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, पर वो नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि इस संसार के लोग उनके शरीर के टुकड़े कर सकते हैं पर उनकी आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और आत्मा, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा है और वो परमेश्वर को ही बिलोंग करती है और वो कभी उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता है। और मेन जो हमारा मनुष्यत्व है वो हमारे बॉडी में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में है, जो अंदर है, जो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाने के लिए दिया हुआ है। और हम देखते हैं कि कभी भी अपना धैर्य परमेश्वर से स्वयं करें। सॉरी, मैंने क्या लिख रखा है, हाँ, कभी भी अपना धैर्य परमेश्वर से, स्वयं से या दूसरों के साथ ना खोना। हो सकता है शुरुआत धीमी हो और मार्ग पथरीला हो, परंतु अंत महिमामयी होगा। ये लिखा हुआ है 1 पीटर 5:9 में। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि दुनिया में जब हम बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग सकरा हो सकता है और पथरीला हो सकता है, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो हमको शैतान की दुनिया में, नरक में ले जाता है। तो अगर हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अपनी धन संपत्ति सब छोड़कर मेरे पीछे आ जा। लेकिन वो जो है उसको दुनिया से, अपनी धन संपत्ति से मोह था और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सका। और बाइबल हमें बोलती है कि अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चल। तो इस तरह से क्रूस उठाने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के लिए कोई भी दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर मुझे स्टीफन का उदाहरण याद आता है। स्टीफन, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम में है कि स्टीफन परमेश्वर का सुसमाचार किया करता था और वो जो है बहुत ही परमेश्वर को प्यार करता था। और उसको यहूदी लोगों ने ही क्या किया, पत्थरवाह करके मार डाला। और जब वो मरने वाला था तो उसने आकाश की ओर अपनी आंखें उठा के देखा और उसने कहा, वो देखो मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। और उसने यीशु मसीह को खड़े हुए देखा कि यीशु मसीह खड़े हो गए हैं उसको अपनी बाहों में लेने के लिए। तो स्टीफन ये गवाही देकर फिर इस दुनिया से गया। तो उसने भी दुख उठाया, उस पर पत्थरवाह हुआ और वो पहला परमेश्वर यीशु मसीह का अनुयायी था जिस पर पत्थरवाह हुआ। फिर हम देखते हैं कि जितने भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन सब पर बहुत यातनाएं आई और सबको जो है जान से मार दिया गया। कहते हैं यूहन्ना को बस नहीं मारा गया जान से, वो अपनी नेचुरल मौत मरा, लेकिन बाकी सब चेलों को मौत के घाट इस संसार के लोगों ने उतारा। तो जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में दुख आएंगे पर हमको घबराना नहीं है। हमें ये सब एग्जाम्पल देखकर जो है दृढ़ रहना है और अपना जो भरोसा
परमेश्वर पर रखना है। और पौलुस कहता है कि चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं परमेश्वर के लिए हूँ। और उस पौलुस का ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है कि वो कहता है कि मैंने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अब क्या है, जीवन का मुकुट मेरा इंतज़ार कर रहा है। और वो जीवन का मुकुट कहाँ है? वो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जो उसने हमारे लिए रखा है और जो यीशु मसीह हमको पहनाएगा जब हम इस दौड़ में हमेशा जो है सफलता पाएंगे। सो हमको प्रेयर करनी है कि प्रभु हमको बुरे कामों से दूर रख, प्रभु हमको शैतान से दूर रख, हमको पाप से दूर रख। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलें, हम उसके साथ साथ चलें, ताकि हम उस जीवन के मुकुट को पा सकें और इस दुनिया में हम उस पर भरोसा रखें और उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, उसके स्वरूप में और आगे बढ़ते जाएं। फिर जोब 8:7 तो आप सबको पता है कि उसमें लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा हो रहा हो, परंतु अंत में तेरी बढ़ती होगी। तो जोब अय्यूब कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा हो रहा हो, परंतु अंत में तेरी बढ़ती होगी। तो शुरू में मार्ग जो चीज़ें छोटी हो सकती हैं, हमको बहुत ही यातनाएं मिल सकती हैं और बहुत विलम्ब हो सकता है, लेकिन अंत में क्या होगा कि हमारी बढ़ती होगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। फिर फिलिपियन 1:6 में लिखा है, परमेश्वर जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो ये व्हाट ए लवली प्रॉमिस इट इज दैट God has created us and God has started the good work in us and He will complete this good work in us. So God will take us through from the very childhood to the old age. And yesterday only I was reading that verse where it was written that when your hair are grey, when you are old, then also I will carry you. As I carried you when you were a child. So this is a wonderful verse. Most of us are scared that in our old age क्या होगा, हम कैसे रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे पास घर होगा या नहीं, खाने को होगा या नहीं, हमारी देखभाल करने के लिए कोई होगा कि नहीं। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं और परमेश्वर ये हमको प्रतिज्ञा देता है कि तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको कैरी करूँगा, तुमको अपनी भुजाओं में उठा के चलूँगा। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रतिज्ञा हमने देखी। फिर उसके बाद हम फिरौन बादशाह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। फिरौन बादशाह जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं ढल सकते हैं, और जिसको परमेश्वर के स्वरूप में ढलना है उनको परमेश्वर की आज्ञा को मानना होता है। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या थी फिरौन बादशाह के लिए कि मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। और फिरौन बादशाह हर बार जो है मना कर देता था, वो आज्ञा देकर फिर से उनको वापस बुला लेता था और मना कर देता था। और आखिर में जब उसने अपनी खुदा की प्रतिज्ञा को माना और जब वो लोग समुद्र को पार करने लगे, उस समय भी फिरौन बादशाह का मन बदल गया और वो उनको वापस बुलाने के लिए सेना को भेज दिया। जब समुद्र के 2 पार्ट्स हो गए और सारे इजरायली जो हैं उस समुद्र के रास्ते से इस पार आ गए और फिरौन की सेना, घोड़े और घुड़सवार सब समुद्र के पानी में डूब गए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें और हम उनका विरोध ना करें। तो अगर हम उनकी प्रतिज्ञाओं, उनकी बातों का विरोध करते हैं तो हम कभी भी यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बन सकते हैं। और बहुत दिनों से मैं ये बताती आई हूँ कि जब हम
किसी भी परिस्थिति में पड़ते हैं, किसी बुरी परिस्थिति में पड़ते हैं, कोई हमारा अपमान कर रहा होता है या कोई हमें गाली दे रहा होता है या कोई हमको हमारी निंदा कर रहा होता है, तो हमें उसको उलट के सेम चीज़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें पूछना चाहिए कि अगर यीशु मसीह मेरी जगह में होता इस समय तो वो क्या करता। तो यीशु मसीह जो है हमें रास्ता दिखाएंगे, जो पवित्र आत्मा है हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि बदला मत लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। अगर हम बदला ले लेंगे मनुष्य से तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और फिर परमेश्वर का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो इस तरह जो हमारे विरुद्ध हैं उनका पलटा परमेश्वर ही लेगा और वो उनको नहीं छोड़ेगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन सिखाता है, बहुत सी बाधाएं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमको अपने स्वरूप में बनाता ही और बनाता चला जाता है। हम बहुत ताज्जुब करते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं, इतनी बीमारियां क्यों आती हैं, इतनी गरीबी क्यों आती है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कुम्हार हमें एक सुंदर बर्तन में ढालना चाहता है और एक रंग बिरंगी बर्तन में ढालना चाहता है, और तभी हमें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। जब तक सोना तपता नहीं आग में उसके आभूषण नहीं बनते हैं, जब तक चांदी तपती नहीं है उसके वो चमकती नहीं, परमेश्वर का स्वरूप उसमें नहीं देखा जा सकता है। जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता है वो चमकता नहीं है। सो मेरे प्रियो, ये इसी तरह से हमारा जीवन है कि हम दिन ब दिन जो है अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाते हैं, और बाइबल हमें ऐसा बताती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल ट्राई टू से दैट इन व्यवस्था विवरण बहुत अच्छी बात लिखी गई है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 5 वर्स 33, जिस मार्ग पर चलने को आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो और कि तुम जीवित रहो और तुम्हारी भलाई हो। तो यहाँ पर एक तरह से परमेश्वर की आज्ञा है कि जो मार्ग परमेश्वर ने तुम्हें बताया है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उस पर चलते रहो ताकि तुम जीवित रहो। कितनी बड़ी बात है, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारी भलाई हो। तो पर ये नहीं कि परमेश्वर जो है हमारा भला नहीं चाहता है, वो हमको हर अच्छी चीज़ देना चाहता है। और बाइबल ये भी कहती है कि हर उत्तम जो गिफ्ट है, हर मतलब जो गुड गिफ्ट्स हैं वो ऊपर से आती हैं, वो परमेश्वर से हमें मिलती हैं। परमेश्वर हमारा रचयिता है और परमेश्वर हमारा कुम्हार है, वो हमारा सुनार है, और क्या है, परमेश्वर हमारा जौहरी है। तो हमें, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा पिता है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और उस पर भरोसा रखना है। जैसे कि एक बच्चे को अपने पिता पर भरोसा होता है कि वो उसको अगर हवा में उछाल भी देगा तो वो उसको ज़मीन पे गिरने नहीं देगा, बल्कि उससे पहले ही वो उसको अपनी गोद में ले लेगा। इस तरह हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और साम 119 में जैसे कि लिखा है कि हम पाप से कैसे दूर रह सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे चल सकते हैं, उसका वचन अपने हृदय में छुपाकर। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उसके वचन पे चलते हैं तब हम पाप से बचे रहते हैं। और ये भी बात दाऊद ने कही है कि परमेश्वर पिता, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे ये ताड़ना दी, क्योंकि इस ताड़ना के कारण ही मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, मैं अपने रास्ते पे बना रहा। क्योंकि अगर ताड़ना नहीं मिलती, अगर मुझे सज़ा नहीं मिलती तो मैं भटक जाता। तो वो परमेश्वर को ताड़ना देने के लिए भी शुक्रिया अदा कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें भी उसी तरह से परमेश्वर की ओर हमेशा प्यार से और आज्ञाकारिता के साथ देखते रहना चाहिए
और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो कभी नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जाएं। वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहें। जो मैंशंस, बड़े बड़े महल उसने स्वर्ग में हमारे लिए बनाए हैं, वो चाहता है कि हम उन महलों में जाके रहें। तो ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाने से पहले कही थी कि देखो मैं जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर सकूँ, ताकि मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम भी रह सको। सो दिस इज द Lord Jesus promise. So we have seen that how to be like Jesus. जीसस यीशु मसीह के स्वरूप में हमें कैसे ढलना चाहिए वो सब यहाँ पर बताया गया है। और आई एम श्योर दैट होली स्पिरिट इज गाइडिंग एंड इट गाइडेड ऑल ऑफ अस एंड इट हैज़ ब्लेस्ड मी ऑल्सो एंड इट मस्ट हैव ब्लेस्ड यू to become like Jesus and get all the blessings from the Lord. Let us pray. Dear gracious, loving Heavenly Father, we praise you and thank you for this wonderful guidance you have given us. Thank you for thy word. Thank you, dear Lord, that you have made us understand what you wanted to tell us. Dear Father, we ask you to bless each one who has heard this message, and we ask you to bless those who will hear this message later on. Dear Father, bless Brother Anupam and Shabnam ji and their family, fill them with your love and fill them with your grace and mercy, and keep them healthy always, and keep all their needs fulfilled, dear Lord. Thank you so much. Be with us and be with my family, and keep me always ready to serve you. Thank you so much. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. So thank you for being with me up till now. Even though I couldn't see any comments because there is something maybe in the page today comments are not coming, but I'm sure you all are there, and when I will watch it later then I'll see the comments. So please like and subscribe this page on the YouTube, and it will help us to increase the people who will listen to the message and who will be blessed from the Lord Jesus Christ. Thank you so much and good night.